Hi everyone, welcome again. So welcome to the part 2 of the series, right? We are doing puzzles every day, alright. So first puzzle we have done, okay. If you have not watched that video, please watch that first and then come back to this particular puzzle, right? There is no link, but yeah, should be in the order, correct? Alright, so we will be doing part 2, second puzzle, okay, of the book, alright. We are doing Test Your Logic, Brain Teasers, George J. Somers book. This is my brief introduction. Again, I am asking because I am posting these puzzles daily on the Telegram channel. Okay, the link is given in the description. So you will have a fair idea that what we will be doing in the next video, right? So I mean, for example, these two puzzles, the first one and the second one, I have already posted in the group. Okay, and if you have joined that particular channel, that in that case you must have solved it in advance, and then you can come watch the video to see how we can solve that particular puzzle, correct? All right, so let's start. This is our second puzzle based on blood relations. All right, look at the question. Val, Lynn and Chris are related to each other but not incestually, right? Matlab, there is no relation between siblings, right? Okay. First condition is that among the three are Val's father, Lynn's only daughter and Chris' sibling. And second condition is that Chris' sibling is neither Val's father nor Lynn's daughter. So which one is of the different sex from the other two? Okay, चलिए start करते हैं इसको solve करना. Just a second. If you have not solved it yet, you can pause the video and solve it first and then again resume. Okay, because idea is not spoon feeding. Understand the logic. इसको पूरा ढंग से सॉल्व करो जब तक नहीं होता है, राइट? ट्राई दिस आउट एंड देन चेक, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व इट देन ओनली यू विल बिल्ड योर लॉजिक, राइट? दैट इज द मेन कंसर्न, इजंट इट? चलिए, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. In blood relation puzzles, there are some basic things to make a family tree. You must understand first that. So whenever we are pointing some people in the same generation, right? So I generally use some kind of codes to make it easy or make it I mean earlier, you can say, right? So let's say if I want to say A is brother of B, all right, so what I'll do, same generation will come in the same row and single arrow will represent siblings, all right, and for male female we can use plus minus whatever you want. Okay, so I use plus for male, minus for female. कोई जेंडर वाइज नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे ही चलता आ रहा है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है. सो इफ आई वांट टू से A इज ब्रदर ऑफ B, सो आई जस्ट नीड टू डू प्लस हेयर. सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट इज A एंड B आर सिबलिंग, और इस पर प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मेल है, और मेल है तो ये इसका भाई होगा, है ना. बट B का जेंडर अभी मुझे नहीं पता है, सो इन दैट केस B कैन बी ब्रदर ऑफ A और B कैन बी sister of A, correct? Now if I say C is wife of B, so I represent it as double arrow. Double arrow means spouse, ठीक है. अब अगर C B की वाइफ है तो डेफिनेटली ये मेल होगा और ये फीमेल होगी, है ना, और कुछ आंसर्स लेना नहीं है हमको. So we'll always follow this particular logic. Upper generation can be in the upper row and lower generation can be in the lower row. So let's say I want to say that X is father of B. So what I'll do, I'll do this and I'll put this, और X क्योंकि father है तो I'll say कि ये plus होगा. Alright. If I say Y is mother of A, तो अब ये दोनों सिबलिंग है, तो A की मदर है तो B की भी मदर होगी, है ना. और अगर इसकी मदर है तो we will only see that इसकी वाइफ होगी, ठीक है. So I'll again use double arrow, Y and minus. All right, और कुछ मत सोचने लग जाना. If I say P is son of B,
तो डाउन एरो P हो गया प्लस, प्लस का मतलब सन. If I say P is let's say brother of Q, so single arrow Q, that's it, right? So now Q का gender मुझे नहीं पता, right? So I can make different questions now that how is A related to Q, how is Q related to C, and so on and so forth, right? You can always see that what can be happened here. So this is the basic idea how you can make a family tree. You can make your own notations, right? Not necessarily आपको यही use करना है, but the idea is कि जल्दी बन जाए उसके लिए you need to use some of the other this kind of things, right? चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. Among the three there are whale's father. कोई whale का father है, तो प्लस साइन आ गया यहाँ पर, है ना. Lynn's only daughter, Lynn's की only daughter, एंड क्रिस का सिबलिंग, क्रिस का एक सिबलिंग है. अब इसमें सिबलिंग है तो आई कांट बी श्योर कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना. दोनों चांसेस हो सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट क्रिस सिबलिंग इज नाइदर वेल्स फादर नॉर लिन्स डॉटर. तीन ही लोग हैं तो ज़्यादा फाइट नहीं आएगी, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इससे स्टार्ट करते हैं कि सी का सिबलिंग कौन हो सकता है. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वी होगा या एल होगा. तो केस 1 बनाते हैं. सपोज क्रिस का सिबलिंग क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं क्योंकि मैंने ऊपर बना दिया है. ठीक है, क्रिस का सिबलिंग लेट्स से एल है. तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन इसकी एक डॉटर होगी एंड ओनली पर्सन लेफ्ट इज वी. तो ये वी होना चाहिए. इससे क्या पता लग गया कि वी जो है वो इसकी डॉटर है. अब वी का एक फादर है, ये तो सिबलिंग है, तो फादर सी तो नहीं हो सकता, राइट. तो ये अगर इसकी डॉटर है तो इसका मतलब ये इसका फादर होगा. तो अगर ये इसका फादर है तो ये प्लस हो गया. उस केस में एल इज द ब्रदर ऑफ सी. बट ये कंडीशंस क्या थी, क्रिस का जो सिबलिंग है दैट इज नाइदर वेल्स फादर नॉर लिन्स डॉटर. ये इसका फादर नहीं हो सकता है. तो कहना इसे ये केस ही रूल्ड आउट हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि क्रिस का सिबलिंग वेल का फादर नहीं हो सकता, विच इज देयर, जो है यहाँ पर. तो इसका मतलब ये केस आउट हो जाता है. तो इसको अब हटा देते हैं. चलो कहाँ, यहाँ बना लेते हैं. और क्या पॉसिबिलिटी है, क्रिस का सिबलिंग वी हो जाए. क्रिस का सिबलिंग वी लोगे तो उसका एक फादर होगा based on this condition. Now और ये पर्सन कौन होगा, डेफिनेटली एल होगा, है ना. तीसरा द थर्ड पर्सन. और एल की डॉटर कोई है, तो एल की डॉटर वी या सी दोनों हो सकती है, राइट. क्योंकि ये दोनों तो सिबलिंग हैं, दोनों ही इसके बच्चे हैं ना एल के. इस केस में ये भी इसकी सिस्टर हो सकती है और ये भी सॉरी डॉटर हो सकती है और ये भी डॉटर हो सकती है. एक और पॉइंट, लिन इज द लिन्स ओनली डॉटर. मतलब ओनली डॉटर का मतलब कि इनमें से एक ही लड़की है, राइट. तो दूसरा कौन होगा, उसका सन होगा. ओनली डॉटर का मतलब ये थोड़ी कि ओनली चाइल्ड है. डॉटर एक ही है, सन तो हो ही सकता है ना. क्लियर. चलिए अब अगर मैं वी को इसकी ओनली डॉटर मान लूं तो अगेन थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी कि क्रिस का जो सिबलिंग है वो वेल का फादर नहीं हो सकता और लिन की डॉटर भी नहीं हो सकती. मतलब दिस पर्सन कैन नॉट बी लिन्स डॉटर. तो ये तो डॉटर नहीं है इसका मतलब. तो कौन डॉटर है, ये खुद. तो अगर ये डॉटर हो गई तो ये डेफिनेटली सन होगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट. अभी समझ में आ रही है सारी बात. लेट्स चेक द कंडीशंस. सो अमंग द थ्री कौन कौन है, वेल का फादर है, वेल का फादर है एल, ठीक है. लिन्स ओनली डॉटर, लिन्स की ओनली डॉटर कौन है, सी, करेक्ट. वी कौन हो गया, सन हो गया. एंड क्रिस का सिबलिंग है, क्रिस का सिबलिंग कौन हो गया, वी हो गया. सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर. सेकंड कंडीशन, क्रिस का सिबलिंग वेल का फादर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो तो एल है, और ना ही उसकी डॉटर हो सकती है. तो ये तो खुद डॉटर है ना. तो इसका जो सिबलिंग है वो उसका सन है. तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है ना कि वो इसका जो सिबलिंग है वो इसकी ओनली डॉटर नहीं है. दैट मीन्स इस केस में हमारा ऑल द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, करेक्ट. क्या क्वेश्चन था, विच वन इज अ डिफरेंट सेक्स फ्रॉम द अदर टू. किसका डिफरेंट सेक्स है, तो ये दोनों मेल हैं
और ये फीमेल है, तो योर आंसर इज सी, दैट इज क्रिस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो ब्लड रिलेशंस कभी कभी टफ भी हो जाता है. ऑलराइट, चलिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मी, ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर क्लास you can say. Right now, in the third video we will be doing third puzzle. I will post it on the Telegram channel. Right, if you have not joined, please join it as soon as possible. And then in the next video I will be doing the next puzzle, the puzzle number 3. Okay, we will be doing one puzzle every day. All right, chalo, let's see. Bye bye.